السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، اٹس ٹیوزڈے۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 130 آنورڈز۔ 130 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Over to Chand aunty. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال جزاکم اللہ خیرا کثیرا. So welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 130 سے. نیکسٹ رکو سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آیت 130. ایکسکیوز می.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन और कौन, यरगबू वो बेरगबत होता है, कौन दूर होता है, कौन एतराज करता है। Who is the one who turns away from? Who turns away from? अन मिल्लती इब्राहिम, किससे दूर होता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, उनके तरीके से, उनके दीन से। इल्ला सिवाय, मन जो, सफीह या जिसने बेवकूफ बनाया, नफ्सहू अपनी ही नफ्स को। यानी कौन दूर भाग सकता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, सिवाय उसके जो अपने ही नफ्स को बेवकूफ बना रहा। एक्सेप्ट द वन हु फूल्ड हिमसेल्फ। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वलक़द इस्तफ़ैनाहू, और बेशक, इंडीड, इस्तफ़ै चुन लिया, ना हमने, हु उसको, और बेशक चुन लिया हमने यानी अल्लाह ने, हु इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। हु यहाँ पर किसके लिए है? सर्कल करके लिखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और नून पर जो खड़ा जबर है ना, इस्तफ़ैना, ये ना है अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने चुन लिया इब्राहिम को, फिर दुनिया, दुनिया में, we chose him, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, in this world। व इन्नहु, और बेशक वो, फिर से हु इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, और बेशक वो आखिरत में, फिल आखिरती, आखिरत में, लमिनस सॉलिहीन, बेशक वो सॉलिहीन में से है, फ्रॉम अमंगस्ट द राइटियस वंस। माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे इस आयत में? जो पिछली आयतों में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं के बारे में पढ़े, और कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बार बार आजमाया। He was being tested in every phase of his life, and हर एग्जाम में वो कैसे पास हुए, हर एग्जाम में अल्लाह का हुक्म मान मान कर, अल्लाह की फर्मा बरदारी करके, तौहीद पर जमे रह के वो हर एग्जाम में पास हुए। और फिर अल्लाह ताला ने उनको तमाम इंसानों के लिए इमाम बना दिया, लीडर बनाया, नबी बनाया। उनकी औलादों के लिए उन्होंने मांगा तो उनकी औलादों में भी नबूवत रख दी। उनकी आने वाली जनरेशन्स के लिए उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने उनके आने वाली जनरेशन्स में नबूवत अता की। और फिर उन्होंने पिछली आयत में एक स्पेशल दुआ मांगी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में वो कबूल हुई कि एक ऐसा रसूल उठा कि जो तिलावत करे तेरी आयत की, और तालीम दे तेरे किताब की, और हिकमत और सुन्नत सिखाए, और वो तज़किया नफ्स करे। बेशक अल्लाह तू अजीजुल हकीम है, जबरदस्त हिकमत वाला है। तो अल्लाह की हिकमत ये थी कि ये दुआ कितने सालों के बाद कबूल हो, और किस तरह वो कबूल हो, कौन से नबी को वो भेजे, कौन सी किताब वो नाजिल फरमाए, और किस उम्मत के लिए उस नबी को भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इस तरह चुन लेते हैं अपनी हिकमत से, अपनी मनशा से। अब इस आयत में अब अल्लाह ताला पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे। देखिए क्वेश्चन कॉमन होते हैं। अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं कि हु इज द वन, कौन है जो ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से दूर भागे,
एतराज करे. Who would turn away from Ibrahim alayhi salam? सुभान अल्लाह. कि उनको तो अल्लाह के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता. सामने अल्लाह का हुक्म है तो बेटे की परवाह नहीं की, अल्लाह का हुक्म है तो अपने फादर की परवाह नहीं की, अल्लाह का हुक्म है तो अपनी बीवी की परवाह नहीं की, अल्लाह का हुक्म है तो अपने जान की भी परवाह नहीं की. ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा और कौन इतना फर्मा बरदार हो सकता है अल्लाह का. तो ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की के दीन से कौन मुंह मोड़ सकता है. अल्लाह ताला सवाल कर रहे, सिवाय उसके जो अपने आप को बेवकूफ बनाना चाहता. यानी फिर वो बेवकूफी के सिवा और क्या हो सकती है वो चीज कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से दूर करे किसी इंसान को. दैट मीन्स जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही दीन दिया गया जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था. दैट वाज तौहीद, मोनोथेइज्म, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत. क्योंकि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना था, जो उनके अब्बा का जो शहर था, हिज ओन नेटिव प्लेस, उसमें भी उसी तरह शिर्क आम था. जैसे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उनको नबूवत मिली, उस वक्त भी मक्का में सेम सिचुएशन थी, सिमिलर सिचुएशन थी, दैट शिर्क बहुत आम था. अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानते हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसने चुना. बेशक अल्लाह ताला फरमाते हमने उसको चुन लिया. We chose him in this world, इस दुनिया में. सुभान अल्लाह. आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने कैसे चूज किया, जरा बताएंगे चांद आंटी. ऐसे रैंडमली चूज कर लिया या उनको टेस्ट कर करके फिर उनको चूज किया. टेस्ट कर करके चूज किया, अंगार में डाला जब आग Yes. गुलजार थी. एग्जैक्टली. दैट मीन्स खरा सोना जो होता है ना, उसको भी आग में तपा तपा कर बिल्कुल प्योर किया जाता है. उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमा कर फिर अल्लाह ने चुना. ये नहीं किया कि रैंडमली किसी को भी चूज कर लिया. जैसे हम स्कूल में भी होते हैं, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल्स, कि हम स्कूल में होते हैं, क्लासरूम में जो टीचर होती है वो देखती है ना सब बच्चों को, एंड शी नोज हु इज द राइट कैंडिडेट टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास, है ना. और फिर she chooses the right candidate with her wisdom, with her observation, है ना, कि who is the right person कि वो इस क्लास का मॉनिटर बन सके. वैसे ही अल्लाह ताला ने भी आजमा कर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चुन लिया इस दुनिया में. और आप देखिए कि चुना तो कैसे चुना, आजमा कर, और फिर उसके बाद उनको जो इमामत दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उन्होंने कितना बखूबी निभाया. काबे की तामीर, he did it in best possible manner, अपने बेटे को साथ लिया. और फिर इतना अच्छा काम करने के बाद फिर दुआएं की अल्लाह से कि अल्लाह तो कबूल फरमा. दैट मीन्स ही वॉज हम्बल. ये नहीं कि मॉनिटर बना दिया, यानी नबूवत मिल गई तो काम खत्म नहीं, वहां से तो असली काम शुरू हुआ उनका. और इतनी दुआएं उन्होंने की और पूरी दुनिया में उन्होंने तौहीद का मैसेज पहुंचाया. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दुनिया में अल्लाह जिसे चुन ले और फिर वो अपना 100% दे, तो फिर उसको क्या मिलता है. देखो, व इन्नहु फिल आखिरती, फिर बेशक वो आखिरत में लमिनस सालिहीन,
नेकोकारों में से होंगे, स्वालिहीन में से होंगे। स्वालिहीन कौन होते, बताएगा कोई? जरा पूछिए चांद आंटी, स्वालिहीन कौन होते? अनम्यूट करके पूछिए। नेकोकार, एकदम अपराइट। ओके, और अंजुम शेख? जो अल्लाह की पूरी पूरी फरमाबरदारी में उतरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फॉलो करते हैं फौरन। ओके ओके, रजिया आंटी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुत्तकी नेक परहेजगार। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नेक सालिहीन वो होते हैं कि जो अल्लाह का हर हुक्म मानने के बाद भी खुद को नेक नहीं समझते। ये नहीं समझते कि मैं बेस्ट हूँ, मैं एक्सीलेंस की लेवल पर पहुंच गया हूँ। नेक काम करने के बाद भी वो हम्बल यानी आजिज रहते हैं और अल्लाह की कबूलियत की तरफ उनकी नजर होती। तो ये आजिजी, हम्बलनेस होना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है स्वालिहीन का। जैसे एक और क्वालिटी खास होती है स्वालिहीन की कि जो कुछ उनके पास होता है वो सब कुछ सेल्फलेसली वो कुर्बान कर देते हैं। Those who selflessly sacrifice everything for the sake of Islam. जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही का तो बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर कि उन्होंने क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस किया। चांद आंटी जब वो अपने अब्बा के यहाँ पास थे तो उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया? What did he sacrifice in his young life? He was asked to leave his house and go. Yes, so he sacrificed his house, his family. फिर जब he had a small son. No. When he was asked to jump in fire, what did he sacrifice? Himself, his life, है ना, सबसे precious. फिर जब औलाद हुई तो फिर क्या sacrifice करने को कहा गया? हजरत इस्माइल को he was ready to sacrifice. Yes, अपने बेटे को, है ना, जो इतने ओल्ड एज में मिले। फिर उसके बाद बीवी और बेटे को छोड़ने का हुक्म दिया था कि उनको सहरा में काबे के पास छोड़कर आओ। तब काबा नहीं बना था, तो अपने बीवी और बेटे को भी छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। तो हर तरह की सैक्रिफाइस उन्होंने की सेल्फलेसली, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए फौरन, विदाउट एनी हेजिटेशन। ये है सालिहीन होने की डेफिनेशन। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आखिरत में भी वो सालिहीन में से होंगे। आपको क्या लगता है कि सालिहीन कितने होंगे? बहुत ज्यादा या बहुत कम लोग? कम है ना, बहुत कम। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन एक खुशखबरी दे देती हूँ आप सबको कि जैसे इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि हमने चुन लिया उसको दुनिया में, तो आपको पता है कि अल्लाह ताला चुन लेते हैं दुनिया में भी। किसको चुन लेते हैं? नबियों में से भी चुन लेते हैं, रसूलों में से भी चुन लेते हैं, फरिश्तों में से भी चुन लेते हैं, जिन्नात में से भी चुन लेते हैं और इंसानों में से भी चुन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें भी चुन लिया है, मुझे और आपको भी चुन लिया है कि हम अल्लाह की ये किताब लेकर बैठे हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ने हमें चुन लिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आधा काम तो हो गया है, अब बाकी का आधा हमको करना है कि अल्लाह की फरमाबरदारी हर हाल में,
सेल्फलेसली होकर आजिजी के साथ इंशाल्लाह। तो ये फिर पूरा हो सकता है कि हमें भी ये मौका अल्लाह ने दिया है कि हम भी सालिहीन में से बन सके इंशाअल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? ये खुशखबरी हुई ना हमारे लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट आयत 131 और भी स्पेशल है। ऑफ कोर्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ही है, लेकिन और क्या स्पेशल है इस आयत में? देखिए, कन्वर्सेशन है अल्लाह ताला और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच कि क्यों उनको सालिहीन का लक़ब मिला। देखिए, इज जब, कॉल फरमाया, कॉल फरमाया, किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने। तो आपको लिखना होगा हु सेड टू हुम। सो अल्लाह सुब्हानहू ताला सेड टू हुम, टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस कॉल, जब फरमाया अल्लाह ताला ने, लहू लिए उसके, फिर से हु है ना, टॉपिक किसका चल रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हु आया है। इसने फरमाया, रब्बुहु, उसके रब ने फरमाया। क्या फरमाया? सिर्फ वन वर्ड, एक वर्ड का ऑर्डर है। अस्लिम, व्हाट इज द ऑर्डर? अस्लिम, इसको सर्कल कर लीजिए। ऑर्डर, command in one word. And what is the command? Aslim, तू सुपुर्द कर दे, तू सुपुर्द कर दे। Submit yourself, किसने फरमाया? अल्लाह ताला ने। किससे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। क्या फरमाया? तू सुपुर्द कर दे। Submit yourself. Okay? कॉल एट वंस, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अस्लमतु, मैंने सुपुर्द किया, आई सबमिट माई सेल्फ, लिरब्बिल आलमीन, लिए उस रब के जो रब है तमाम आलमीन का। आई सबमिट माई सेल्फ to the Lord of the worlds, entire universe. सुबहानल्लाह, क्या कन्वर्सेशन है ये। उनकी आजमाइशों से पहले अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि ए इब्राहिम, तू झुका दे, झुक जा, मान जा। फरमाया, हाँ अल्लाह, जो कुछ आप कहो, आई एम रेडी टू लिसन, आई एम रेडी टू ओबे। बस बात खत्म, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। सुभान अल्लाह। अब समझ में आ रहा है क्यों बन गए ये खलीलुल्लाह, क्यों बन गए ये अल्लाह के चुने हुए, क्यों बन गए ये सालिहीन में से। समझ में आ रहा है क्या फरमाया उन्होंने? अल्लाह ताला ने बस फरमाया कि सरेंडर योरसेल्फ, सबमिट योरसेल्फ, सुपुर्द कर दो अपने आप को। तो अल्लाह ताला ने जो जो करवाया, सब कुछ किया। ये है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन नमूना, बेहतरीन, बेस्ट रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहतरीन मुसलमान और मुखलिस थे, प्योर, उनके इंटेंशंस बिल्कुल प्योर थे, और इसीलिए वो अल्लाह के हर हुक्म को मानने वाले थे। तो अल्लाह ताला ने भी उनको क्या दे दी? फिर हिदायत दे दी, रहनुमाई कर ली। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100% फरमाबरदार थे, कभी उन्होंने शिर्क नहीं किया,
उनकी क्वालिटीज लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहे तो. नंबर 1, 100% फर्मा बरदार. नंबर 2, कभी भी शिर्क नहीं किया. नंबर 3, अपने रब की नेमतों के हमेशा शुक्रगुजार थे. He was always thankful, gratified to his Lord. अल्लाह के फेवरेट थे, अल्लाह के फेवरेट थे और सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलते रहते थे. अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ तक कि जब उनके अब्बा को भी उन्होंने क्या क्लियरली कह दिया था कि ए मेरे अब्बा, कि मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ, मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं. मैं तो सिर्फ अपने खालिक, अपने पैदा करने वाले के लिए झुका हुआ हूँ, वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा. उम्र भर एक आंख झपकने के बराबर भी उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह. यहाँ तक कि शिर्क करने वाले के लिए उनके दिल में हमेशा नफरत थी, इसीलिए अपने कौम, अपने बाप, अपने वतन को छोड़कर वहां से चले गए. क्या मॉरल मिला? क्या मॉरल मिला इससे? कि वो बिल्कुल मुशरिक नहीं थे और he was absolutely upright, यकसू थे. अल्हम्दुलिल्लाह. यकसू थे. वेरी गुड. अपराइट थे. और मॉरल क्या मिला? लेकिन हमको भी शिर्क छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अल्लाह की मानना चाहिए और रसूल की. ओके. शमीम? बाजी शुक्रगुजार होना चाहिए नेमतों को. ओके. Aji, when it comes to shirk, even we should not be bothered what even our family thinks. अगर shirk है तो we should be rejecting that completely. Very good. Okay. अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करें. Yes. आयशा? जब हम अल्लाह ताला की ओबीडियंस करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें खुद ही गाइड कर देता है. Exactly. This is the moral. This is the moral. This is still half. अल्लाह से बढ़, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम खदीजा आंटी. अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं. अल्लाह से सबसे बढ़कर आगे अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म, उसके बाद में सब चीजें पीछे. यस. अल्हम्दुलिल्लाह. वेरी गुड. तो मॉरल हमको ये मिला. देखिए मॉरल किसको कहते हैं? हमने एक स्टोरी पढ़ी, हमने एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतने बड़े नबी के बारे में पढ़ा, तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हर आजमाइश में उन्होंने अल्लाह को सबसे आगे रखा, सबसे ऊपर रखा, अपने ऊपर, अपने औलाद के ऊपर, अपने फादर के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर. ही केप्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला ऑन टॉप इन हिज लाइफ, टॉप प्रायोरिटी. नंबर 1. नंबर 2, जब अपने आप को, अपनी औलाद को, किसी चीज को उन्होंने अल्लाह के आगे नहीं किया, वैसे ही अल्लाह की किसी क्रिएशन को अल्लाह के साथ भी खड़ा नहीं किया, यानी कभी भी शिर्क नहीं किया. तो जब ये दो चीज हमारी लाइफ में, अगर मैं ये सीख लूं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह को मुझे हर चीज में आगे रखना है, ऑन टॉप, अपनी भी जात से आगे, और नंबर 2 कि मैं किसी को भी अल्लाह के साथ भी शरीक ना करूं, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी हिदायत देगा, अल्लाह मुझे भी चुन लेगा, फिर अल्लाह मुझे भी रास्ता दिखाएगा, फिर मैं भी अल्लाह की दोस्त बन सकती हूँ, मैं भी सालिहीन में से बन सकती हूँ. बट कंडीशंस ये है. दिस इज द मॉरल इंशाअल्लाह. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आयत नंबर 132. और ये वाला कन्वर्सेशन कितना शॉर्ट एंड स्वीट था. आयत 131 का
एक वर्ड में अल्लाह ताला ने ऑर्डर दिया और 3 वर्ड्स में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दे दिया, और सिर्फ जबान से नहीं, उन्होंने अमल से करके भी बताया। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अच्छा, अस्लिम में इस्लाम वर्ड नजर आ रहा है किसी को? चानंटी, इफ यू कैन गो टू द प्रीवियस आयत। हाँ, जी हाँ, यस। अस्लिम में इस्लाम वर्ड आ रहा है नजर। तो फिर आपको इस्लाम का मतलब क्या मिला आज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम? Is पढ़िए। it submission to the will of God? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। करना। सुपुर्द कर देना, सबमिट योर विल टू द विल ऑफ अल्लाह। एग्जैक्टली शमीम, वेरी गुड। तो ये है इस्लाम का मतलब, और इस्लाम का ओरिजिन हमको मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और आज आप अगर देखें इन टुडेज सिनेरियो, पॉलिटिकल इंटरनेशनल सिनेरियो में, ये कहा जाता है कि इस्लाम तो अभी अभी 1400 साल पहले आया हुआ मजहब है। इट इज नॉट एन ओल्ड रिलीजन, इट इज नॉट एन एंशिएंट रिलीजन, बट सी, Islam shows us, Quran shows us कि no, Islam is way back before Muhammad sallallahu alaihi wasallam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस चेन की आखिरी कड़ी थे, वो तो खातिमुन नबी है। इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ इस्लाम मिलता है बार बार। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट आयतों में भी, वी विल सी कि कैसे हमको इस्लाम का रेफरेंस यहाँ से मिलता है। और आज वी विल टेक दिस विथ अस होम, अपने बच्चों को बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम इज सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। ठीक है, चले 132। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ववस्सा, और वसीयत की। विल, वसीयत का मतलब क्या होता है? टू मेक अ विल, WILL, विल। बिहा, उसकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की उसकी, बनी ही, अपने बेटों से, व याकूब, और अपने पोते याकूब अलैहिस्सलाम से। किस चीज की वसीयत की उन्होंने? इस्लाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, विल की, एडवाइस किया अपने बच्चों को, नसीहत की, किस चीज की? इस्लाम ही की। किसको? अपने बेटों को, अपनी औलाद को, और खासकर अपने पोते याकूब अलैहिस्सलाम को भी। क्या फरमाया? या बनी, ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटों, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने, इस्तफा, चुन लिया, लकुम, लिए तुम्हारे, अद्दीन, इस दीन को, दीन इस्लाम को। आपको दीन वर्ड नजर आ रहा है वहां पर? दीन वर्ड के नीचे आप क्या लिख लेंगे? इस्लाम। This religion, Islam, for you. Who has chosen? Allah has chosen. इस दफा वर्ड फिर से आया, Allah has chosen this religion, Islam, for you. फिर क्या करो तुम? फला तमूतुन्ना, फिर हरगिज नहीं तुमको मौत आए। तमूतुन्ना में मुतु वर्ड है मौत। फिर हरगिज नहीं तुम्हें मौत आए, हरगिज नहीं तुम मरना, इल्ला, सिवाय, यू शुड नॉट डाई एक्सेप्ट, व अंतुम मुस्लिमून, सिवाय ये कि तुम मुसलमान होकर मरो। यानी योर लाइफ शुड बी ऑफ दैट ऑफ अ मुस्लिम, एंड योर डेथ, अंटिल योर डेथ, यू मस्ट रिमेन अ मुस्लिम। और फिर से मुस्लिमून में रूट वर्ड इस्लाम मिला आपको। मुस्लिमून में व्हाट इज द रूट वर्ड? इस्लाम। इस्लाम से बना मुस्लिम।
तो तुम्हें मौत न आए इस हाल में कि तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हुए ही मरो. गॉट इट? ये किसकी वसीयत थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, किसके लिए? उनके बेटे और पोतों के लिए. हाँ, अभी हम देखेंगे for those who have joined later on कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, can you see this picture चांद आंटी? जी हाँ, यस. हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं यहाँ पर. देखिए, पढ़िए. दो बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम. हाँ, और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, है ना? जी हाँ. हाँ, तो हम देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब वसीयत इंसान कब करता है? अपनी उम्र के जनरली आखिरी हिस्से में, है ना? तो इस आयत से हमें पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, यानी उनके पोते भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ टाइम में ही पैदा हो चुके थे. Isn't it? So all 3 generations were present at the same time. और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको ये नहीं कहते कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसके नाम, मेरी वो प्रॉपर्टी उसके नाम, मेरा बैंक बैलेंस इतना. नो नो नो. वसीयत क्या की? कहते हैं कि ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है. ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मुसलमान बनो या मुसलमान रहो. कितना अच्छा तरीका. इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरे बच्चों, अल्लाह ने चुना है तुम्हारे लिए ये दीन इस्लाम एज अ रिलीजन, तो तुम्हें इस्लाम ही पर अपनी जिंदगी गुजारनी है और मौत भी तुम्हें इस्लाम ही पर आए, यानी फर्मा बरदारी की मौत, फर्मा बरदारी की जिंदगी. दिस इज द रिलीजन ऑफ सबमिशन. ला इलाहा इल्लल्लाह. क्या मतलब होता है इसका? ला कोई का इलाह मतलब, नहीं. हाँ, ला का मतलब क्या होता है चांद आंटी? नहीं नहीं. नहीं. इलाहा, कोई माबूद, कोई इलाह. वेरी गुड. नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इलाह, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के. There is none worthy of worship besides Allah. ये है इस्लाम. तो और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद दीन इस्लाम को फॉलो किया, अपने बेटों के लिए भी, अपने पोतों के लिए भी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, देखिए आज की जनरेशन तक हम लोग दीन इस्लाम पर है ना. दैट मीन्स दीन इस्लाम is a way of life. It is going to remain always modern. कयामत तक ये कभी भी पुराना दीन नहीं हो सकता. It cannot be an ancient religion because इस्लाम हर जनरेशन को, हर टाइम को, हर पीरियड को ये लेकर चलता है. प्लस इट इज एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल. तो इससे ज्यादा मॉडर्न और कोई दीन हो ही नहीं सकता. अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये वाला आपको समझ में आ गया ना, इनका जनरेशंस. और ये लोग, नबियों की वसीयत प्रॉपर्टी की नहीं होती, बल्कि किस चीज की होती है? दीन की, इस्लाम दीन की. की होती है, इस्लाम की होती है. करेक्ट. अल्हम्दुलिल्लाह. और फिर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट आयत में याकूब अलैहिस्सलाम. यहाँ पर आपने देख लिया ना याकूब अलैहिस्सलाम का. नेक्स्ट आयत में अभी हम देखने वाले हैं और याकूब अलैहिस्सलाम के आगे की जनरेशंस. सो वी आर गोइंग टू दैट 133. अच्छा, क्या हम में से कभी किसी ने
वसीयत की अपने बच्चों को. क्या वसीयत करते हम लोग? लिख कर भी जाते ना अपनी विल. जनरली क्या होती है चांद आंटी? प्रॉपर्टी का, माल, पैसों का, जायदाद का, वो ही लिखते हैं लोग, है ना. और फिर आज हमारी आंखें खुल रही है ना कि रियल वसीयत क्या है, कैसी होनी चाहिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की. राइट. चले 133. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अम कुंतुम, या क्या थे तुम. अम कुंतुम, या क्या थे तुम. शुहदा, मौजूद. विटनेस, गवाह. क्या थे तुम गवाह. वेर यू प्रेजेंट. इज, जब. हजर, जब वो हाजिर हुई. हाजिर होना यानी क्या होना? आना. याकूब अलैहिस्सलाम पर अल मौतु, मौत. अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे कि क्या तुम मौजूद थे. वेर यू प्रेजेंट देयर. जब आई थी याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत, यानी जब उनका आखिरी वक्त आ गया, तो क्या तुम वहां प्रेजेंट थे? तो ना मैं वहां मौजूद थी, ना आप वहां मौजूद थे. हम तो हो ही नहीं सकते. ये तो बहुत हजारों साल पहले की बात है. तो देखिए कि कुरान पाक में कैसे कन्वर्सेशंस होते हैं और हम लोग कौन सी स्पीड से भागते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता है कि अल्लाह ताला मुझसे सवाल कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या अल्लाह ताला कभी नाराज है या कभी खुशखबरी दे रहे हैं. कुछ भी पता नहीं, हम अपनी स्पीड से भागते रहते. तो अब अल्लाह ताला का क्वेश्चन सुनिए कि क्या याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के वक्त तुम वहां मौजूद थे. तो हम सबका जवाब है कि नहीं भाई, हम तो नहीं मौजूद थे. तो अब अल्लाह ताला हमें बता रहे. इज, जब. कॉल, कहा. ली बनी ही, लिए अपने बेटों के. तो अब याकूब अलैहिस्सलाम की बात हो रही है. तो जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने बेटों से, यानी वसीयत की थी. मौत का वक्त है, देखिए आखिरी वक्त. तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब वसीयत की थी, एडवाइस किया था अपने बच्चों को. अभी क्या है ये हम कोटेशन मार्क में डालेंगे आगे. माता अबुदूना, यहाँ से उनका एडवाइस शुरू होती है. तो हम जैसे इन्वर्टेड कॉमास होते, ये उनकी स्टेटमेंट है. माता अबुदूना, किसकी तुम इबादत करोगे. हुम विल यू वर्शिप. मिम बादी, मेरे बाद. बच्चों से पूछ रहे कि ए मेरे बच्चों, मेरे मरने के बाद, आफ्टर माय डिमाइस, हुम विल यू वर्शिप, तुम किसकी इबादत करोगे, मुझे बताओ. कॉलू, उनके बच्चों ने जवाब दिया. आपको पता है याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे. स्क्रिबल नहीं करे प्लीज स्क्रीन पर. डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन प्लीज. हाँ, तो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे. अब वो बेटों ने क्या जवाब दिया? कॉलू, उन्होंने कहा, ना अबुदू, हम इबादत करेंगे. देखिए ना अबुदू में आपको नून नजर आ रहा है. न का मतलब होता है हम, फिर न को छुपा दो तो क्या बचा? अबुदू, इबादत. उन्होंने कहा कि हम इबादत करेंगे इलाहक, तेरे इलाह की, यानी ए अब्बा जान, हम इबादत करेंगे आपके माबूद की. व इलाह, और उस माबूद की. आबाइक, आपके बाप दादा के माबूद की. इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के. इलाहन, माबूद की. वाहिदन, सिर्फ एक. वाहिदन, ओनली वन. सो उनके बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया कि ए अब्बा जान,
ہم سب عبادت کریں گے اسی معبود کی جس کی آپ عبادت کرتے آئے، جس کی آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے باپ اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے چاچا اسماعیل علیہ السلام نے جس ایک اللہ کی عبادت کی، صرف ایک، ہم بھی صرف ایک اسی اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو لیے اس کے مسلمون، پھر سے ورڈ آیا دیکھیے، ہم لیے اس کے مسلمون ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، obedient submissive، we will surrender ourselves to the will of Allah۔ پھر سے مسلمون ورڈ مل رہا ہے آپ کو، پھر اس میں اسلام ورڈ مل رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی انہوں نے کہا تھا مسلمون۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، میں نے اسکرین پر ابھی ایک اور پکچر یہاں پر سیٹ کیا تھا، ہاں پھر سے ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے وہی بنی اسرائیل کہلائے، اور ان میں ایک تھے یوسف علیہ السلام، یاد ہے نا؟ تو آپ دیکھیے کہ ان سب سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پریزنٹ تھے اس وقت جب ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی، isn't it چاندنی؟ جی ہاں، ہاں، تو دیکھیے جو انہوں نے اپنے دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، he saw his grandfather advising his children کہ صرف اسلام کو فالو کرنا، صرف مسلمان بن کر جینا اور مسلمان بن کر مرنا۔ تو جو انہوں نے دیکھا تھا اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے، تو جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی تو انہوں نے بھی وہی کیا، اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں سے وہی پرامس لی اور ان کو وہی وصیت کی، نصیحت کی۔ تو یہ ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے گھر سے پڑوس سیکھتے ہیں، ہمارے گھر سے سیکھتے ہیں، جو ہمارے بڑے کرتے ہیں ہم بھی اسی چیز کو فالو کرتے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہو گئی کہ ہم سب کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا اور مال کی محبت ہے، we have so much greed and love for wealth کہ ہم صرف مال کی بات کرتے رہتے، تو ہمارے بچے بھی وہی بات کرتے۔ دیکھیے آپ، اگر ہم قرآن کی بات کریں گے اور اسلام کی بات کریں گے تو پھر ہمارے بچے بھی وہی بات کریں گے، بٹ نیچرل۔ یہاں پر بھی یعقوب علیہ السلام نے وہی چیز کو فالو کیا اور ان کے بچوں نے بھی ان کو سبمیشن، اوبیڈینس کی پرومس کر دی، اور ایک اللہ کی عبادت، نو شرک ایٹ آل۔ اگر آج ہم صرف مال کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا شرک کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مال کے ساتھ۔ ہم نے اس پوزیشن پر ہماری زندگی میں پرائیورٹی کس کو بنا لیا ہے؟ بتاؤ۔ مال کو ویلتھ، بچ، isn't it؟ ویلتھ، مال، کریکٹ۔ اس لیے ہم مرتے وقت بھی اسی کی بات کرتے اور زندگی میں بھی اسی کی بات کرتے، اور بچہ بڑا نہیں ہوتا تو اس کو بولتے تم کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تم کو پیسہ کمانا ہے، تم کو گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ We never talk to them about Allah. We never teach them about only one Allah. تو پھر اللہ کی جگہ پر نعوذ باللہ ہم نے دنیا کو رکھ دیا، اور اسی لیے ہمارا اتنا برا حال ہو رہا ہے آج۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ہم نے ان میں سے کون سے بیٹے کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی؟ یوسف علیہ السلام بچی، یوسف علیہ السلام۔
اور باقی کے جو 11 بیٹے تھے ان کے، اور اس میں سے ایک جو سب سے چھوٹے تھے بنیامین، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی کے 10 بیٹے جو تھے ان کے، انہوں نے کتنا غلط کام کیا تھا. ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے کتنا غلط کام کیا. تو یہ کن کی اولاد تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے. اور ایک نبی کی اولاد میں سے 2 بچے چھوڑ دیے 12 میں سے. 2 were very good صالحین، اور باقی 10 نے تو ایسا کام کیا انہوں نے کہ اپنے ہی بھائی کو کڈنیپ کر کے اور پھر ان کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، ڈمپ کر دیا ویل میں، اور پھر آ کر اپنے ابا سے بلنٹ فیس کر کے کہہ بھی رہے ہیں کہ we couldn't help it, it was not our intention. تو آپ دیکھیں کہ وہی نبیوں کی اولاد میں سے بھی ایسی اولاد ہو سکتی ہے اتنی پرومس لینے کے بعد بھی. تو پھر آپ کی اور ہمارے کیا چانسز ہیں کہ ہماری اولاد کیسی ہو؟ تو ہمیں بھی خوب دعائیں کرنی ہے، خوب محنت کرنی ہے اپنے بچوں کے پیچھے انشاءاللہ. اور اپنے گھر کا ماحول اگر ہم چینج کریں گے اور پرائرٹی پر ہماری پرائرٹیز کو چیک کریں گے نا انشاءاللہ، تو وی کین برنگ دیٹ چینج. بٹ ویسے تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے. تو سب سے بڑی دعا اللہ سے یہ کرے کہ اللہ تو ہدایت دے مجھے بھی، میرے شوہر کو بھی، ہماری اولاد کو، آنے والی جنریشنز کو، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کرے انشاءاللہ. چلے ون مور آیت 134. تلک امتن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک امت تھی، وہ ایک جنریشن تھی، قد خلت، بے شک وہ گزر چکی. It was a community and that has passed away. کیا کوئی بھی جنریشن باقی رہ جاتی ہے؟ جتنے بھی لوگ آتے ہیں اور پھر وہ گزر جاتے ہیں. تو خلت کا مطلب گزر چکی. لہا ما کسبت، لیے اس کے جو اس نے کمایا، اس کمیونٹی نے جو عمل کیے، جو کام کیے، وہ ان کے ساتھ گئے، ہے نا. لکم، لیے تمہارے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے. This is so beautiful. It is a lesson of lifetime. اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے کہ جو تمہارے پچھلے جنریشنز گزر چکی، باپ دادا پردادا، انہوں نے جو عمل کیے وہ ان کے ساتھ تھے. اب تم جو کرو گے آج ایٹ پریزنٹ، وہ تمہاری کمائی ہے. That is your earning. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا. تسألونا میں سوال ورڈ نکلتا ہے، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا. اما، اس کے بارے میں، کانو یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے. یعملون میں عین میم لام عمل ورڈ نظر آیا. What they used to do. You will not be asked about their deeds. سبحان اللہ. such an important lesson this is. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ اس آیت کہ تمہارے باپ دادا، تمہاری پچھلی قومیں، پچھلی جنریشنز، انہوں نے جو کیا، کیا انہوں نے شرک کیا تو ان کا عمل ان کے ساتھ. اگر انہوں نے شرک نہیں کیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی، تو ان کا عمل ان کے ساتھ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کس سے پوچھا جائے گا؟ انہی سے پوچھا جائے گا about their own deeds. تو پھر تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا میرے عمل کے بارے میں، جو مجھے کب کرنے ہیں؟ آج کرنے ہیں، at present. So
You are not going to be questioned about their deeds. They will not be questioned about your deeds. तो फिर तुम क्यों उनको फॉलो करते हो उनके रिलीजन में? अगर आज पता चल गया है कि वो गलत थे, समझो, अगर आज हमें पता चला कि भाई मेरी दादी माशाल्लाह, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बट अगर वो कोई रीति रिवाज फॉलो करती थी, सम रिचुअल्स, सम कल्चर्स, कि जो हमें कुरान और सुन्नत में नजर नहीं आते, कहीं भी कोई रेफरेंस नहीं मिलता, तो फिर मेरा काम क्या है कि अल्लाह, फिर ये तो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है जो मेरी दादी या परदादी करते आई है, तो फिर आज अगर मैंने कुरान पढ़ा और मुझे समझ में आ गया, तो अभी आई शुड स्टॉप डूइंग इट. मुझे अंधाधुंध उनको फॉलो नहीं करना है, ब्लाइंड फोल्ड फॉलो नहीं करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए फूफी सफिया, उनकी फूफी का नाम था सफिया, और ए बेटी फातिमा, मुझसे जो भी मांगना चाहो इसी दुनिया में मांग लो, मैं वहां तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा. किससे फरमाया? अपनी बेटी, प्यारी बेटी शहजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से और अपनी फूफी से. दैट मीन्स कि जो आज अगर हमारी आंखें खुल गई है इंशाल्लाह, फिर अब हम गलत रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करेंगे. जो हो चुका वो हो चुका. अब अगर मेरी दादी ऐसा कुछ करती थी तो फिर मेरा काम क्या है कि ऑन हर बिहाफ मैं अल्लाह से माफी मांगू, अस्तगफार करूं कि अल्लाह मेरी दादी मासूम थी, उनको नहीं मालूम था, कि अल्लाह उनकी इग्नोरेंस थी, आप उनको भी माफ कर दीजिए, और अब मैं उस गलत काम को फॉलो नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं सुन्नतों को फॉलो करूंगी. तो क्योंकि औलाद तो सदका जारिया होती है ना, तो अगर मैंने सुन्नतों को फॉलो करना शुरू किया है तो या अल्लाह इसके वजह से इन नेकियों का बदला मेरी दादी को भी देना, मेरे दादा को भी देना, मेरे अब्बा को भी देना, ताकि उनके गुनाहों की माफी हो जाए, उनकी मगफिरत हो जाए. और अगर मैं भी उन्हीं के गलत कामों को फॉलो करती रहूं तो आपको पता है कि इसका बर्डन भी उन पर जाएगा, गुनाहों का शेयर भी उन पर जाएगा. नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह. तो व्हाट इज द टेक हियर? Baji, there are many rituals that were right, which were also very wrong. तो हम जब अभी कुरान पढ़ रहे हैं तो we know what is right and what is wrong. So we should reject those that were rituals which were against the Sunnah and accept those that were in accordance with the Sunnah. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह. प्लस ये बहुत बड़ी जो ये आयत है, इसका रेफरेंस जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, कि जो लोग वहां मदीना में मौजूद थे उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा जो कर चुके सो कर चुके, अब तुम्हारे पास रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, कुरान नाजिल हो चुका है, अब तुमको फिर से इस्लाम मिला है. जो बीच की जनरेशन्स में इस्लाम क्या हो गया था? गायब हो गया था, करप्ट हो गया था ये रिलीजन, क्योंकि लोगों ने उसमें मिलावट कर दी थी. तो अब तुम्हारे पास जब प्योर दीन आ गया है, तो अब तुम अपने बाप दादा के उन गलत रस्मों को छोड़ दो, तुमसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा और उनसे तुम्हारे बारे में नहीं पूछा जाएगा. सो एवरीबडी इज आंसरेबल फॉर हिज ओन डीड्स. ये सबसे बड़ा मॉरल है कि मुझे मेरे हर हरकत, हर अमल का अल्लाह को जवाब देना है, हिसाब देना है. हर एक का हिसाब सिंगल होगा, कोई किसी के लिए आंसरेबल नहीं है. अल्लाहु अकबर. वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.